एक बहुत सुंदर कविता की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं, उनके साथ शुरुआत करते हैं कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद करीब आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर. A very, very good morning, everyone. I am Juhi Malhotra, and today, once again, I have the pleasure of being your host. On behalf of APDI, we welcome everyone to Annual National Conference 2021 with a lot of positivity and hope of learning from each other and taking home important takeaways today. Here we begin our day. Seated on the dais is our chairman, and may I request our chief guest, Shri Karnail Singh, IPS, former Director, Enforcement Directorate, to please join us on the dais. Zordar taliyon ke saath Abhinandan. We request Shri C. Pal Singh Ji, former IG and DG of CAPSI and APDI, to please join us on the dais. Once again, please put your hands together, everyone, as we welcome our dignitaries for taking their places on the dais. Shri Mahesh Sharma, Secretary General, APDI, बहुत-बहुत स्वागत. Shri Ajit Singh, General Secretary, APDI, may we request you to join us on the dais. And Shri R. Jagdeva, President, Delhi Chapter. बहुत-बहुत स्वागत. Once again, as a host, we welcome Shri R. Jagdeva, President, Delhi Chapter. बहुत-बहुत स्वागत. General Sanjay Soi, may we request you to please join us on the dais, as requested by our chairman. Zordar taliyon ke saath Abhinandan. A very, very warm welcome to our esteemed panel seated on the dais. Ladies and gentlemen, we would be welcoming our chief guest by presenting him with a bouquet of flowers. Ladies and gentlemen, we request our chairman, Shri Kumar Vikram Singh Ji, to please present a bouquet of flowers to our chief guest, Shri Karnail Singh Ji. Ladies and gentlemen, please put your hands together for a formal welcome of our chief guest today. And may I also request Secretary General Shri Mahesh Sharma to welcome Shri C. Pal Singh Ji with a bouquet of flowers. Once again, a round of applause. हमारे देश की परंपरा है किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हमेशा ईश्वर के नमन के साथ हम करते हैं. लैंप लाइटिंग के साथ अब हम शुरुआत करना चाहेंगे और निवेदन करते हैं हमारे चीफ गेस्ट और अन्य सभी जो गणमान्य अतिथि विराजमान हैं, कृपया लैंप लाइटिंग के साथ दीप प्रज्वलन के साथ आज के दिन की शुभ शुरुआत करते हैं. Ladies and gentlemen, it is time for us to light the auspicious lamp as we get ready to begin the proceedings of this day formally. We have a few speakers who are joining us virtually from different parts of the country and abroad. We look forward to a wonderful day which is going to be very productive and informative, as well as a day full of takeaways as we conclude at the end. समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, धरती से आकाश की ओर. We seek the blessings of the Almighty. Ladies and gentlemen,
For the welcome address, सबसे पहले, first and foremost, may I please invite our chairman, Kumar Vikram Singh ji, to please join us and address the August House today, welcoming Kumar Vikram Singh ji, our chairman. Ladies and gentlemen, put your hands together for a very, very dynamic chairman who's full of a lot of ideas और जिनकी leadership में बहुत तरक्की की है APDI ने. बहुत बहुत स्वागत सर. आदरणीय श्री कर्नल सिंह जी, फॉर्मर डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री सीपाल सिंह जी, फॉर्मर आईजीपी एंड ऑनरी डीजी ऑफ एपीडीआई, श्री महेश शर्मा जी, एपीडीआई के राष्ट्रीय महामंत्री, श्री अजीत सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी, जनरल संजय सोई जी, he is the CEO of both organizations, and R.S. जगदेव जी, दिल्ली प्रदेश एपीडीआई के अध्यक्ष, विराजमान सभी साथियों, बहनों, भाइयों, सालाना दिन है हमारा और ये 16 साल हो गए कि लगातार हम अपने ये दो संगठन जो है कैप्सीओ एपीडीआई, उसके सारे लोग आके मिलते हैं, संगठन की बातें होती हैं, आगे कैसे बढ़ना है, पीछे क्या क्या हुआ है, जिसको लेखा जोखा बोलते हैं, उसका चर्चा होती है. और कुछ सालों से एपीडीआई का अलग हो गया और कैप्सी का अलग हो गया. रियलाइज़ किया गया कि जो एपीडीआई की जो इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं कैप्सी के जो बड़ा समुंदर है उसमें 2-3 सब्जेक्ट ऐसे ही आ जाते थे. तो एपीडीआई के लोग बोलते थे नहीं जी हमें तो कम समय मिलता है. तो हालांकि मैं हर साल बोलता था अभी सिक्योरिटी भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, लेकिन इनकी जो संतुष्टि नहीं होती थी साथियों की, तो फिर हमने इसको थोड़ा सा अलग किया था और उससे काफ़ी संगठन को बल मिलता भी नज़र आ रहा है. और पहले नहीं पता लगता था कि किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट हो रही है एपीडीआई में. अब ये भी पता लगने लगा है कि कौन कितना काम कर रहा है संगठनों में, कितनी एक जान भरने वाले लोग हैं या जिनको पुश करने की ज़रूरत है. ये भी एक हमें देखने को मिल रहा है. साथियों, जहाँ तक ये एपीडीआई की जो प्रोग्रेस का मंत्र है वो तो श्री महेश शर्मा जी थोड़ी सी बातें कहेंगे अपने में और बताएंगे कि क्या प्रोग्रेस हुई है, कहाँ कहाँ हम लोग आगे बढ़े हैं. लेकिन जो ओवरऑल जो मैं एक आपको सिनारियो बताना चाहता हूँ कि जिस ढंग से इस प्रोफेशन का विकास हुआ है, जिस ढंग से ये प्रोफेशन बड़ा है और जिस ढंग से ये तरक्की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कर रहा है, ये बहुत बड़ी अद्भुत बात है कि स्टडी का विषय है भी किस ढंग से पूरी दुनिया में जो प्रोफेशन ऑफ इंटेलिजेंस है, प्रोफेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसके कितने कितने अलग अलग डोमेन्स बने. एक समय था जब मेरे जैसे व्यक्ति ने इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू किया तो सिंपल एक मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशंस से हम लोगों ने शुरू किया था. उन दिनों में लोग हम पे हंसा करते थे कि आप जासूस हैं और उसकी मजाक भी उड़ा करते थे. पिक्चर आएगी, 2 जासूस आई थी पिक्चर, तो उसमें प्राण था और साथ में अशोक कुमार थे. तो मेरे पास भी मेरे साथ में कैप्टन गुरु होते थे. हम दोनों ऑलमोस्ट वो टोपियां लगा के वो पहन के उसका स्वरूप बनाते थे कि जासूस उसी से पहचाने जाते थे. और मैं तो उन दिनों में अपने हाथ में पाइप भी रखता था शेरलॉक होम्स जेम्स बॉन्ड बनने के लिए, वो इमेज बताने के लिए भी देखो जासूस ऐसे होते. और उसी ढंग से हमें उन्होंने मानना भी शुरू कर दिया था. लेकिन ये निरंतर जो संघर्ष चला है, किस ढंग से हम लोगों ने, जो इस देश के 5-7 लोग थे जिन्होंने सारा काम शुरू किया था इंडिया में, और वो बड़े बड़े इम्पोर्टेंट धुरंधर लोग बने, उनकी कंपनियां देश में बड़ी मशहूर हुई हैं, दुनिया में भी मशहूर हुई हैं.
यहाँ तक कि हम लोग की जो मेहनत हुई है, जिस ढंग से हमने इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाया है, हमारे इंडिया के जो सबसे जो एक इम्पोर्टेंट मिस्टर हेनरी बाबा हुआ करते, शायद आप लोगों को पता ना, बॉम्बे में से लिटिल बोर्ड सर्विसेज थी उनकी, वो कितने साल पहले WAD के फ्रांस में जाके अध्यक्ष बन गए थे, जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव के, ये मुझे सन याद नहीं है, लेकिन हेनरी बाबा आज से 50 साल पहले, शायद 50 साल पहले, वो दुनिया के सबसे बड़ा संगठन जो है, जो 1925 में बना था, उसके वो जाके अध्यक्ष बन गए। ये तो खूबी होगी हेनरी बाबा की। बाद में हेनरी बाबा ने किताबें भी लिखी जासूसी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं वो जो इंडिया का दबदबा था, जहाँ इनकी नॉलेज थी, जो इनका काम करने का ढंग था, उसको प्रमाणित किया, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया भी, एक इंडिया के लोग किस ढंग से काम करते हैं। दूसरी बात, वो चीज़ चलती गई और समय आया जैसे मेरे जैसा व्यक्ति भी उसी संगठन का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। ये बहुत बड़ी बात थी हमारे इंडियन के लिए कि कैसे उन्होंने मुझे किस प्रोसेस के साथ उन्होंने चुना। WAD में अध्यक्ष बनना कुछ छोटी बात नहीं है। वहाँ आपको मेंबर बनना पड़ता, कई साल रहना पड़ता, फिर डायरेक्टर का चुनाव होता, डायरेक्टर रहना पड़ता, फिर जाके उनका 3rd वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता। लगातार इतने चुनाव इंडिया में नहीं होते जितने WAD में होते हैं। तो वो प्रोसेस है कि दुनिया के सबसे अच्छे धुरंधर जो इन्वेस्टिगेटर हैं, जो वर्ल्ड के बड़े इन्वेस्टिगेटर हैं, वो अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, पहली सीढ़ी से लेके अंतिम तक। तो वो सौभाग्य हमें इस चीज़ का प्राप्त हुआ। और फिर इंडिया के लोगों का तो दबदबा हो गया WAD में। इसमें आज महेश शर्मा जी भी वहाँ पे डायरेक्टर हैं। हमारे इंडिया के RP चौहान जी है, वो 2nd वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, अगले अध्यक्ष बनने वाले वही हैं। कहने का मतलब है कि जिस लगन के साथ, जिस अपनी सूझबूझ के साथ हम लोग अपना काम करते हैं, वो इतने यंत्रों का इस्तेमाल भी नहीं करते। ये आपकी बुद्धि है जिसकी जो आप लगाते हो और आप केसेस सॉल्व करते हो, उसमें आपको दुनिया में आपका एक बहुत बड़ा नाम बना पड़ा है और इसमें तरक्की होती जा रही है। फिर जो और चीज़ें, ये तो पैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन या दूसरी ऐसी चलती गई, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद तो जो कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस का जो दौर चला है, जो आपका लिटिगेशन स्पोर्ट का जो दौर चला है, ड्यू डिलिजेंस का चला है, फाइनेंशियल फ्रॉड का चला है, साइबर फ्रॉड का चला। आज बैठे हमारे पास कर्नल सिंह जी जो इसी में आपको बताएंगे। लेकिन इन सारे क्षेत्रों में इंडिया में बहुत तरक्की हुई है। भारत सरकार इसको मानती है कि आप लोगों का बड़ा काम है, इसलिए उन्होंने 2007 में, शायद आई थिंक 2007 में, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी रेगुलेशन एक्ट पेश किया था और वो इस सारे प्रोफेशन को उन्होंने प्रबंधन इसका करने के लिए वो एक्ट पेश हुआ था। और एक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं जो मुझे कहने में कोई परेशानी नहीं है, कुछ देश विदेश की जो 4-5 अकाउंटिंग फर्म्स थी, जो जहां अकाउंट्स काम करने की आई हैं, वो ही इस फील्ड में घुस गई और उन्होंने ही इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा हिस्सा उन्होंने लेना शुरू कर दिया। भारत सरकार के जो मल्टीनेशनल कंपनी, वही उनको ही अच्छा मानती थी। नाम तो उनके बड़े थे, लेकिन उसमें काम करने वाले कौन थे? वो इंडियन ही लोग थे। वो इंडिया के CBI के, IB के, आपके फाइनेंशियल सर्विसेज के लोग थे जिनको वो हायर करते थे। उन कंपनियों ने मिलके उस एक्ट को पास नहीं होने दिया। 13 साल तक एक एक्ट पार्लियामेंट के ठंडे वस्त्र में पड़ा रहा। हम लगातार संघर्ष करते रहे। हमारे साथ VM पंडित जी थे, सुभाष बदावन थे, C पाल सिंह जी थे। लगातार हम उसके ऊपर पूरा जोर लगाया। ये नहीं सरकार मानती नहीं थी, सरकार कहती बड़ी बात है, वो एक कमेटी बना देती थी, हाई पावर्ड कमेटी, दूसरी कमेटी, तीसरी कमेटी। हम उनके पास जाते, उनको बताते भी ये बात है, आपने फॉरेन की जो कंपनियां हैं वो नहीं होने दे रही। अरे कौन कौन सी कंपनी होने नहीं देती? अरे भैया आपको पता सारा कौन नहीं होने दे रही। जहाँ पे तो एक एक्ट पार्लियामेंट के अंदर कुछ स्वार्थी व्यक्तियों ने आप लोगों की प्रोग्रेस को रोकने के लिए, आपकी जो इनकम को रोकने के लिए और आपको अपना कुली बनाने के लिए, अब वो कुली इसलिए कि काम वो लेते और आके काम देते, अपने श्री मुकेश जी को देते हैं, दूसरे लोगों को देते काम हम करते तो हम इनके कुली बन गए। पैसा वो कमाते थे और हमें सिर्फ थोड़े से पैसे दे के लेते। तो बार बार सरकार को इसके बारे में कहा गया। होम मिनिस्टर जी इसको खूब समझते थे, लेकिन
काम आगे नहीं बढ़ा। उनकी लॉबी बड़ी स्ट्रांग थी, आज भी स्ट्रांग है, आपको बताऊं मैं। उनका जो प्रभाव है, आदि गवर्नमेंट तो केपीएमजी की रिपोर्ट पे चलती, कोई डिलाइट पे चलती, उन्हीं से रिपोर्टें लिखाते हैं। जैसे जहाँ लोग नहीं है, रिपोर्टें लिखने वाले कौन है? वही इंडियंस हैं वहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं जो एक प्रॉब्लम हमारे प्रोफेशन में, एक ब्लॉक पड़ा है, वो सुधारने की जरूरत है। मेरी कोई 15-20 दिन पहले होम जो गृह मंत्री हैं, MOS हैं, श्री निशित परमानिक जी, उन्होंने हमारी मीटिंग जिससे मैं और जनरल साहब गए थे, तो उन्होंने बिल्कुल कैटेगरी बता दिया कि देखिए आपका जो एक्ट है वो हमने वापस ले लिया था पिछले अप्रैल को पार्लियामेंट से, क्योंकि 13 साल हो गए थे। 13 साल में काफ़ी चेंजेस आई समाज में। मैं कहा जी कोई नहीं आई है, आपने उसको हटाना था, एक्ट हटा दिया, क्या चेंज आई इन्वेस्टिगेशन में? तो कहते नहीं जी रूल्स सारे अच्छे बने थे हमने, जो हमने कैप्सी से भी अच्छे रूल बना के, जो कैप्सी के रूल्स में प्रॉब्लम थी वो हमने इसमें हम उसको एड्रेस किया था। कैप्सी में नेशनल लाइसेंस नहीं मिलता, लेकिन हमने जो पटारा एक्ट है उसमें नेशनल लाइसेंस की भी व्यवस्था की, और बोर्ड जो सेंट्रल बोर्ड बनाया जो कैप्सी में नहीं है, स्टेट बोर्ड बनाने की व्यवस्था दी। होम मिनिस्ट्री ने इसको सारा फाइनल किया। अब जब सब चीज़ें हो गई तो मंत्री जी को उन्होंने कहा देखिए जी अब हमने मन बना लिया है, इसको हम दोबारा ला रहे हैं। ये कईयों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, कईयों की बुरी भी खबर हो सकती है, क्योंकि अब आपको लाइसेंस बनाने की उनकी मंत्री जी के हिसाब से पूरी तैयारी है। उन्होंने कम से कम 7-8-10 मिनट पर इसी के ऊपर चर्चा की, प्राइवेट डिटेक्टिव के ऊपर, कि हम किस ढंग से इसको हम इन्वॉल्व करेंगे अपने इंटरनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में। और मैंने कहा एक्ट तो पूरा ठीक बना पड़ा, आप इसको देख लीजिए, इस पर कोई त्रुटि तो है नहीं, अब आप पेश कर दोगे तो ढंग है। लेकिन फिर लॉबी का मैंने बताया कि हम लॉबी की परवाह नहीं करते। मैं चलो जी अच्छी बात है, अगर आप नहीं परवाह करोगे, ये बन जाएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन साथियों अब समय आ गया आप लोगों को प्रोफेशनलाइज होने का। जो आपको 13 साल से हम लगातार बोल रहे थे कि आप भाई ट्रेनिंग लीजिए, आप इसके अंदर सर्टिफिकेशन लीजिए, अपने लोगों को ट्रेन कीजिए, लेकिन आप तो सारे अपने आप को सिकंदर समझते हो कि मुझे तो ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं जी, मैं तो बड़े अच्छे से केस करता हूँ। लेकिन हमें पता था भाई ट्रेनिंग का एक दिन आपका सर्टिफिकेट देखा जाएगा, जिस दिन आपको लाइसेंस मिलेगा उस दिन कहेंगे भाई साहब आप किस में काम करते थे, आप CBI में थे, पुलिस में थे, डिटेक्टिव की ट्रेनिंग आपने कहाँ ली? अब बोलो जी मैं तो विक्रम सिंह से ले गया। विक्रम सिंह तो यूनिवर्सिटी नहीं है ना, सर्टिफिकेट देने का काम तो एक किसी न किसी संस्था का होगा। तो संस्था को बनाने की हमने कोशिश की, हमने आपको ट्रेनिंग देने की बार बार कोशिश की है। यहाँ तक कि जो इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस वाले हैं III, उनके साथ लांसर अपना इसने APDI ने एग्रीमेंट किया कि हम इंश्योरेंस के जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी ट्रेनिंग हम III से करेंगे। जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है आपका इंश्योरेंस का, वो उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। उन्होंने पैसे खर्चे, एक बहुत बड़ी अमेरिकन ट्रेनिंग कंपनी है, आपको याद होगा बार बार इसका जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा जी आप लीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस फ्रॉड इस देश में बहुत बड़ा है, तो कम से कम आपके पास एक सर्टिफिकेट हो जाए जिससे इसके ऊपर आपको कोई मान्यता तो प्राप्त हो कि आपके पास डिग्री कौन सी है। तो ये लगातार जो हमारा चीज़ चल रही है आपको ट्रेन करने की, आपको प्रोफेशनल में लाने की, और आपके बाकी लोग जो हैं वो ट्रेंड हों, क्योंकि समय बदल रहा है, रूल बदल रहे हैं। अब आप पीछे हम सर्वेलेंस करते थे, आप सर्वेलेंस नहीं कर सकते, आप उसमें स्टॉकिंग में आ जाते हो, आप किसी लड़की का पीछा नहीं कर सकते। अब प्राइवेसी रूल्स आ रहे हैं, आ भी चुके हैं कि आप कहेंगे ये तो प्राइवेसी है जी, अगर प्राइवेसी का वायलेशन करोगे तो आप जेल में जाओगे। ये बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये बहुत बड़ा इशू बन गया है। अब प्राइवेसी को आप उल्लंघन ना करो, इसके कोई ना कोई ढंग आपको अपनाने पड़ेंगे कि नहीं। बाकी जगह तो दूसरे देशों में अगर आप फ़ोन के ऊपर बोलते हो जी मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपने को खबर लेनी होती है, जहाँ हम फेक कर लेते हैं ना, जहाँ मैं यहाँ से बोल रहा हूँ बताइए जी डिटेल दीजिए, अब वहाँ पे ये अपराध हो गया है। आप फ़ोन के ऊपर किसी का नाम लेके कोई सूचना इकट्ठा नहीं कर सकते, जो अभी भी हम करते रहते हैं। तो ये सारी बातें, नई चीज़ें जो दुनिया भर में आई हैं, उसको आपको समझने की जरूरत है। साइबर क्राइम बहुत बड़ा बन गया, साइबर फ्रॉड बहुत बड़ा, एक अरबों खरबों का फ्रॉड हो रहा है। ये कोरोना के टाइम में कितने बड़े फ्रॉड हुए हैं। आपके पास IPR के केसेस हैं। IPR इतना बड़ा एक बिजनेस बन गया है कि इस कोरोना काल में लोगों ने जितने सैनिटाइज़र थे वो सब नकली बनने शुरू हो गए, खाने के पदार्थ बनने लगे, विस्की बनने लगी, दूध बनने लगा, बच्चों के प्रोडक्ट बनने लगे, जूते आते, जितनी चीज़ें थी।
अगर कहीं दुनिया में कोरोना काल में जो कोई प्रोफेशन प्रफुल्लित हुआ है, वो सारे फेक आइटम बनाने वाले लोग थे। वो अरबों खरबों डॉलर का बिजनेस चला। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फेक का सिंडिकेट चलता है दुनिया भर में, ये बहुत ही संगठित है। इट इज़ ए वेरी वेल ऑर्गेनाइज थिंग। और इसका जितना पैसा इकट्ठा होता है किसी चीज़ का, ये देश में आतंक फैलाने के लिए होता है। ये दुनिया में प्रमाणित हो चुका है कि ये जो फेक का रैकेट चलाते हैं, क्योंकि जल्दी पैसा लोगों को मिल जाता है, फंडिंग का पता नहीं लगता, तो अरबों खरबों का रुपया आपकी देश के अंदर अशांति फैलाने के लिए, टेररिज्म फैलाने के लिए ये फेक का काम होता है, जो कोरोना में खूब हुआ। ये तो बड़े मौके से मैंने प्रधानमंत्री जी की को चिट्ठी लिख के कहा कि ये कोरोना काल में ऐसा काम होएगा। तो पुलिस तो उस वक्त तो लॉ एंड ऑर्डर में लगी थी, आपके जो प्रोटोकॉल को फॉलो कराने में लगी थी, जितने ये कोविड के थे, तो उस वक्त पुलिस अपने और काम में लगी थी। तो तब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे प्राइवेट डिटेक्टिव जो हैं उनको अलाउ करें कि वो जगह जगह जाके रेड करें जहाँ गलत हो रहा है। डिटोल का बन रहा है, दुनिया नेम ए प्रोडक्ट वो सारे बने, आपके ये मास्क जो हैं ये इतने नकली बने, कुछ कहने की बात नहीं। तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसके इंस्ट्रक्शन दिए हर डीजीपी को, हर प्रदेश के डीजीपी को, कि अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है ऐसे रेड करने की, तो उसको आप प्रेफरेंस दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए। हुआ भी, ये मेरे संज्ञान में है भी, कितने रेड उस वक्त भी आप जैसे प्राइवेट डिटेक्टिव ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वहाँ पे रेड किए और उसको सक्सेस किया। कहीं ना कहीं अखबारों में भी खूब आया कि ये चीज़ पकड़ी। टेलीविज़न भी हमने किया कि कैसे एक सैनिटाइज़र, बिहार की एक छोटी सी कंपनी में हर ब्रांड का सैनिटाइज़र बन रहा है, और क्या उसमें तेजाब टाइप की चीज़ डाल रहे हैं, हाथ धोने वाली। तो साथियों, ये जो जितना भी ये आपका प्रोफेशन है, इसके अंदर बड़ा स्कोप है। इसको अगर आप ढंग से आप करोगे तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अब हम आपको प्रोफेशनलाइज करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हो। रिसेंटली हमारी मीटिंग श्री बिमल पटेल जी हैं, ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी देश की नेशनल यूनिवर्सिटी बन गई है, सरकारी यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी बनी है। अब उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट डिटेक्टिव की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हम देंगे, हम ट्रेनिंग देंगे। अब कितनी बड़ी बात है कि आप लोग उसमें ट्रेनिंग लेंगे, या आपके बाकी लोग ट्रेनिंग लेंगे, या नए नौजवान लोग इसमें आएंगे इस करने के लिए। उनको अगर एक राष्ट्रीय जो यूनिवर्सिटी है वो अपना अगर सर्टिफिकेट देती, जो सब जगह मान्य होगा, तो आपको आगे लाइसेंस लेने में प्रॉब्लम। लाइसेंस के लिए सर्टिफिकेट जरूरी होगा। मैं अभी आपको फिर बता रहा हूँ, इसमें लापरवाही मत कीजिए। जब ये आपके RRU के सर्टिफिकेट शुरू होंगे तो आप सबके वो तो ऑनलाइन होंगे, सारे के सारे ऑनलाइन होंगे, आपके काम में कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन आप उसको जरूर करिए, और करके आप जिस दिन सर्टिफिकेट हो जाए, लागू हो जाएगा, उस दिन आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा कि दैट आई एम ए क्वालिफाइड इन्वेस्टिगेटर, आई कैन डू दिस थिंग। इसी ढंग से और बड़े बड़े सर्टिफिकेशन है, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड के ऊपर बहुत कुछ है, ड्यू डिलिजेंस के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, इंटरनल इंटेलिजेंस के लिए बड़ा है। तो ये जो कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस का जो एक नया आपके पास एक नया फील्ड खुला हुआ है, उसमें आपको बड़ा ही तरक्की मिलेगी, उसमें आपको बहुत ही बिजनेस मिलेगा। और आपका बिजनेस तभी होगा इफ़ यू आर ए नोन एज ए क्वालिफाइड इन्वेस्टिगेटर। आपकी संस्था का नाम एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेटर है। प्रोफेशनल आप तब बनते हो जब आपके पास कोई ना प्रमाण हो कि यू आर ए प्रोफेशनल। तो इसलिए इसका सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी जल्दी अब शुरू करने जा रहे हैं। तो आपसे मेरे एक सलाह होगी कि आप इसको सारे लोग देश भर में, मैं देख रहा हूँ कि बाकी स्टेट में भी काफ़ी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं। गुजरात से मैं त्यागी जी को देख रहा हूँ, चौहान साहब जिनके बारे में बोल रहा था, RP चौहान जी, जो हमारे WAD के सेकंड वाइस प्रेसिडेंट बन के आगे बने अध्यक्ष हैं, इन्होंने हमें, और जितने साथियों को मैं देख रहा हूँ इस सामने के ऊपर, आई कैन सी कैप्टन जोशी ऑल्सो फ्रॉम गुजरात। सो देर आर सो मैनी पीपल एट द मोमेंट। आपके भारती जी को देख रहा हूँ मैं, भारती इज ऑल्सो सिटिंग देयर। So what I'm trying to do is that the kind of network we have in India is one of the finest reliable network. आगे आप कहीं आपको कोई केस मिलता था तो आपको पता नहीं लगता था कि आप किसको गुवाहाटी में किसको बोले, आप कौन कहेगा। अब आपके पास
ये पपिया आ गई है, ये लड़की जो है इसकी कंपनी है वहाँ की पपिया की। ऐसे हर जगह रिमोट प्लेसेस में आपके पास एपीडीआई के डिटेक्टिव हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं। देश विदेश में हम करते हैं, किसी देश का केस आता है तो हम वहाँ पे अपने जो काउंटर पार्ट उनसे करते हैं। तो आपको जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं इसके ऊपर थोड़ा सा ज्ञान का आदान प्रदान होगा, आप में अवार्ड्स दिए जाएंगे। इस बार हमारा सौभाग्य प्राप्त था कि एक ऐसे व्यक्ति को हम अवार्ड दे रहे हैं और जिनका खुद का बेटा किडनैप हुआ, मर्डर कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने किस ढंग से उसकी पुलिस नहीं कर पाई, उनको ढूंढ पाई उस मर्डर को। तो एक जो दुखी पिता था उसकी लगन देखना कि किस लगन से उस व्यक्ति ने उस मर्डर को, किडनैपर को पकड़ा। एक बार नहीं, दो बार पकड़ा उसको और उसको जेल पहुंचवाया। जेल पहुंचाने के बाद वो आदमी जेल से थोड़ी देर के बाद पैरोल पे आ गया। उसने अपना फेक मर्डर कर दिया, अब करवा लिया, फिर उन्होंने उसको पकड़ा। तो इमेजिन करिए जो आम व्यक्ति जिसका जो एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर था, किस तरह अपनी अंदर की वेदना के लिए जिसका बेटा खो गया हो, उसने किस ढंग से, किस लगन के साथ उस व्यक्ति को ढूंढा। ये अद्भुत घटना है। और उसके बाद उन्होंने उस सिर्फ अपना तक ही रखा, अब वो उनके आसपास में कई बच्चे जो गुम होते हैं, किडनैप होते हैं, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन फ्री में जाके करते हैं। कर्नल सिंह जी, ये बड़ा अजीब बात है, एक व्यक्ति जो सिविलियन था, जिसको कुछ नहीं पता, जिसका अपना बेटा मर गया, उसका मर्डर को ढूंढना, उसके बाद वो लगातार लोगों को, जहाँ कहीं किसी का कोई ऐसा किडनैप हो जाता, बच्चा होता, ये उनकी जाके ढूंढते हैं, सक्सेस क्या है। तो पुलिस को बड़ी मदद मिल रही है। तो ये ऐसे व्यक्ति को भी हम अवार्ड देंगे, या बड़े बड़े आज अवार्ड जो अनाउंस किए गए जाएंगे वो भी बड़े अच्छे होंगे। तो ये राष्ट्रीय दिन हमारा जो आज का दिन है, इसके अंदर हमारा अपना लेखा जोखा का, आपका फ्यूचर कैसे होगा, आपकी तरक्की कैसे होगी, आपने अपना प्रबंधन कैसे करना, उसके ऊपर चर्चा है। हमने कितना पैसा खर्चा क्या दिया, उसके ऊपर करेंगे। और फिर जो ज्ञान की बातें हैं, हमारे पास आज विदेशों से 3 लोग जुड़ने वाले हैं। उनमें से 2 लोग तो WAD के एक चेयरमैन हैं, वो इसमें जुड़ेंगे। डॉन रूसो एक हमारे प्रेसिडेंट एलेक्सी हैं, वो भी बीच में उसमें भी वो आएंगे। इसके अलावा आपके एलन राव जी आज हमारे जो अध्यक्ष हैं, उनको काम पड़ गया, बहुत ही ज़रूरी, वो चले गए, उनका भी है। हमारे बधावन साहब हैं जो प्रेसिडेंट ही सिख, तो उनका भी है। बाकी सीपाल सिंह जी के इसमें होंगे। 1-2 और लोग हैं जो इनके ऊपर अपना प्रकाश डालेंगे, आपको ज्ञान देंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। मुझे पूरा होप एंड ट्रस्ट की आप सारी बात को अच्छे ढंग से सुनेंगे और आगे की बातों के लिए हम जैसे एक अपने संगठन को आगे बढ़ाना है, इसको और क्या इसमें चेंजेस लाने, उसको भी चर्चा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, माय प्लेजर। Thank you so much, Chairman Sir, for setting the tone for the day and for sharing such important details about what happened in the past 1 year. Our Chairman is very, very clear in his thoughts, views, and ideas, and the vision of taking the industry forward. This vision is always in his mind. We are very lucky that we have such a Chairman. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, now we will be presenting the annual report. And this will be presented by Shri Mahesh Sharma, Secretary General APDI. Very, very committed and hardworking, as we have always seen him. Let's welcome Shri Mahesh Sharma, Secretary General APDI. पर जोरदार तालियां महेश जी के लिए। Hello. Thank you. Respected our chief guest, Sri Karnal Singh IPS, our chairman Kumar Vikram Singh ji, our IG C. Paul Saab, he is a DG of APDI also, and our General Sanjay Soi, Shri Ajit ji and Shri Jagdev ji, और मेरे प्यारे साथियों, through my report I would like to highlight the number of initiatives taken by the APDI during 2021, and especially during the COVID season, pandemic, when India was going through a very critical period of COVID-19, and there was shortage of medicines, oxygens, supply of fake medicines, sanitizers,
and food products, liquors. The APDI took up the case with the Prime Minister. We should be thankful to our Chairman Kaur Vikram Singh. He talked to the Home Minister, he talked to the Prime Minister, and they settled a committee for this, and it was implemented. And he requested that this work for fake product, our investigation is well set. I mean, they are equipped, they can do it. So we should be thankful, sir, for you that you have taken the initiative, and lot of people have got the work also. The private investigator helped in saving many lives. Private investigators have helped in checking insurance fraud also. The midterm meeting held on 16th July in Harvard Manor was a great success. Professor Dr. Triveni Singh IPS, SP Cybercrime, UP Police participated virtually and spoke about the cybercrime investigators. He said that cyber security professionals are in huge demand today, as any investigation is incomplete without forensic tools. This is very important, and this is fact also. Our Shri Alan Rao, former Deputy Commissioner of Police and eminent lawyer, covered the topic of litigation support and intelligence. Intelligence and surveillance techniques were covered by Shri Mukesh Sani. He is sitting here, former Senior Superintendent of Police, CBI. Other eminent speakers covered various important topics of interest of APDI members. The webinar of on insurance fraud and investigation was held on 22nd July 2021 at 1640 hours virtually. The event was organized by Insurance Institute of India, a leading education and training provider, and is closely associated with all the segment of the insurance industry in association with the APDI. Survey reports on impact of COVID-19 pandemic was released during the webinar. That survey report was very huge and very important for the government. I must say that private detective and investigator industry worked round the clock during tough time to help the law and order machinery of respective state in checking the minions. We have made on 10th of December 2021, as Chairman said, in RRU, Rashtriya Raksha University, they have already decided, settled, established one training institute for our investigators. They will give training, and that certificate, as said by Chairman sir, it will be recognized by the government. It will be very authenticated and authorized, so that you can have that certificate. You must go for that training also. And finally, I would like to thanks all participants. They have come from all the states. And one thing also I want to tell you, during this pending period, sir, Chairman sir, I would like to tell, more than 50 members we have added. More than 50 members. In spite of this pandemic period. So thank you very much, sir. And now I present the balance sheet also of the APDI. This is the balance sheet. आप जिसको भी देखना है, करना है, balance sheet, profit and loss account, everything is here. Still it is in profit. Okay, because so many purchases borne by the CAPC. Okay, this I want to tell you. So please propose somebody, and seconded, Ajit. No, Ajit cannot do it. Yes, anybody? Rajiv? Yes, propose. Okay. Any discussion? Anybody? Any doubt about this balance sheet? The balance sheet will be shared with everybody. Everybody, yes. दिखा रहे हैं, पता नहीं लगता लॉस है, प्रॉफिट है. नहीं, this I have told nutshell. नटशेल में, लेकिन आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम उसको वेबसाइट पे नहीं डालते. कई लोग वेबसाइट पे डाल दो, लेकिन ये बैलेंस शीट आपकी इंस्पेक्शन के लिए, अगर आप कोई चाहेगा बैलेंस शीट भेजो, आप सेक्रेटरी जनरल को अपना मेल भेजिए, आपको बैलेंस शीट भेज दी जाएगी. टोटली ट्रांसपेरेंट इस पे है, सर्टिफाइड चार्टर काउंटर बनाता है. वैसे भी I will send this balance sheet to the
chapter presidents of the states. You can you can share with them. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir, for presenting the report. Ladies and gentlemen, for any event to be successful, sponsors play a very, very important and indispensable role. Dear friends, our platinum sponsor for today's conference is Lancers, India's leading intelligence and security risk consulting corporation. Please take a look at the video which will let us know more about them. So, a video on Lancers. We thank all our sponsors. Platinum sponsor का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. Lancers, which is India's leading intelligence and security risk consulting corporation, for all the support and help that they have offered for today's annual national conference. Ladies and gentlemen, we will now take a look at this video और इसके बाद हमारे national president का address होगा. For all the support and help that they have offered for today's annual national conference. Ladies and gentlemen, we will now take a look at this video और इसके बाद Thank you so much. Thank you, Lancers. जोरदार तालियां हमारे platinum sponsors के लिए. Thank you for all the support and making this conference possible in such a big manner. Ladies and gentlemen, we would now be requesting for an address by our National President APDI, Shri Subhash Wadhavanji. It will be a video address. Kindly look at the video, please. Support and making this conference possible in such a big manner. Ladies and gentlemen, we would now be requesting for an address by our National President. Dear friends APDI, and Shri members of Subhash APDI, Wadhavanji. It will be a video I address. sincerely welcome you Kindly to look at this the conference of Thank you for all the APDI. support and making this I am conference sorry that possible I am in not such a big personally manner. available Ladies and to gentlemen, welcome you we would now at be this requesting for an gala address fair. by our National President Dear friends APDI, and Shri members of Subhash APDI, Wadhavanji. one thing comes be a into video my address. mind that Kindly is a high welcome time you for to us to Thank you for all reunite the support ourselves. and making this. Some technical glitches, and we hope that they'll get solved and we're able to listen to our speakers who are addressing us online. Our National President APDI, Shri Subhash Wadhavan, please.
Yes, sir. Ladies and gentlemen, we now have arrived at a very, very important segment where we will be presenting the awards and mementos. These are very, very important awards. कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जिनके पीछे कुछ कहानियाँ छुपी हैं. कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने बहुत एग्जेम्पलरी वर्क किया है, बहुत अच्छे कार्य किए हैं अपने अपने फील्ड में. जो भी काम उन्होंने किए हैं, they have stood at the top, setting a benchmark for the others. Requesting our chief guest and our chairman sir to kindly please present these awards. हम निवेदन करते हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय से कि कृपया इन अवार्ड्स को प्रदान करने की कृपा करें. हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे अवार्ड्स के साथ, उसके बाद मोमेंटोज यहाँ पर प्रेजेंट होंगे. लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहला अवार्ड जो हम देने जा रहे हैं उसका नाम है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. फ्रेंड्स, दिस गोज टू Shri Mukesh Chandra Sahni, former SSP CBI, SS Legal and Verification Agency LLP. He carries 34 years of experience of CBI, wherein he had investigated a large number of high-profile cases pertaining to anti-corruption, economic offences, wildlife and narcotics. He had successfully unearthed several big rings of drug racketeers, which resulted in the seizure of huge quantity of arms and ammunitions and seized huge quantity of RDX arms and ammunitions. In his recognition of good services in the CBI, he has been awarded the Indian Police Medal for Meritorious Service and the President Police Medal for Distinguished Services in the year 2006. बहुत बहुत बधाई. Once again, जोरदार तालियां श्री मुकेश चंद्र साहनी के लिए. अगला अवार्ड है बेस्ट कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेटर ऑफ द ईयर, एंड दिस विल बी प्रेजेंटेड टू श्री शिवेंद्र प्रताप सिंह फ्रॉम लांसर्स नेटवर्क लिमिटेड. Shri Shivendra Pratap Singh played key role in planning and execution of many enforcement actions against counterfeiters during lockdown periods. This was done to secure the lives of citizens during most difficult times. Equipped with over 20 years of experience in providing customized risk mitigation solutions in South Asia, Shivendra is spearheading Lancers, India's leading intelligence and security risk consulting corporation. He has a master's in international security with a specialization in terrorism, insurgencies and intelligence in South Asia from the University of Warwick, UK, and a business degree from University of Sheffield, UK. Many congratulations. We move on, and now the award for Best Detective of the Year. Ladies and gentlemen, हम चाहेंगे सब आप इस बात पर ध्यान दें, एक कहानी जो अब हम सुनाने जा रहे हैं. Best Detective of the Year award goes to Shri Suryakant Bhande Patil from Spy Sanket. एक बार जोरदार तालियां इनके लिए. Shri Suryakant is a civil contractor based out of Pune. Over the past 13 years, he has helped solve dozens of kidnapping cases for free. In 1999, Suryakant was living in Shirwal in Maharashtra when his family faced a great tragedy. His 3-year-old son Sanket was kidnapped from outside his school. When the police efforts fell short, he took matters into his own hands. Over the next 8 months, Suryakant helped investigate his own son's kidnapping and bring the criminal responsible to justice. He was unable to save Sanket's life though. Following the incident, Suryakant vowed to not let this happen to anyone else. In 2009, he started his own detective agency, Spy Sanket, where he works on kidnapping cases for free. Suryakant has helped bring justice and closure to dozens of families and continues to do even today. Many, many congratulations for the award. Ladies and gentlemen, moving on, we now have the Best Young Investigation Entrepreneur of the Year.
For the Best Young Investigation Entrepreneur of the Year, the award goes to Ms. Papiya Bhadra from Green Beret Enforcement and Secret Services Private Limited. Ms. Papiya belongs to Jalpaiguri in West Bengal. She is the founder director of Green Beret Enforcement and Secret Service Private Limited, having its office in Siliguri. She successfully completed number of cases in brand power protection, financial investigation, land litigation case, and some classified cases. Many, many congratulations to Ms. Bhadra. Moving on, the next award is Investigation Entrepreneur of the Year. And this goes to Shri Devvrat Puri Goswami from Tianzu Investigation Services Private Limited. Zordar taaliyan inke liye bhi. Shri Devvrat Puri Goswami is the MD and CEO of Tianzu Investigative Services Private Limited. He is the first paranormal investigator of India. Over the past few years, he has not only established the most diverse and impacting detective agencies and paranormal investigating teams, but has served his individual and corporate clients with top-notch quality and ethics of service. He was the director of Devbhoomi Advertising, and he has also worked as SIT Chief Assignment Head, Special Correspondent in many news channels of India. Congratulations, Shri Devvrat Puri Goswami. एक बार फिर से जोरदार तालियां. After the awards, we have a few mementos which will now be presented. For the first, which is our platinum sponsor, Lancers Network Limited. Ladies and gentlemen, let's thank our platinum sponsors. एक बार फिर से जोरदार तालियां इनके लिए. Shri Shivendra Pratap Singh is receiving this memento. Moving on to appreciation awards now. Appreciation awards now to City Intelligence Private Limited. Thank you so much for all the support. City Intelligence Private Limited, बहुत बहुत धन्यवाद for all the support that we have been receiving. Hatfield Investigation Services Private Limited. Ladies and gentlemen, can we have a louder applause, please? Everyone, a big round of applause. Thank you for all the support. And after Hatfield, Top Shield Security Services Private Limited. Many, many thanks and many, many congratulations. Once again, a round of applause for Top Shield. We have a few other appreciation awards. Probe Intelligence Services. Probe Intelligence Services. Thank you so much for all the support we have been receiving for the conference. Drishti Network. Many, many thanks, and we must appreciate the efforts of each and everyone who have put in their hard work, given their time and energy to make this possible. Sleuths India Consultancy Private Limited. Sleuths India Consultancy Private Limited. Thank you so much, and this is a very well-deserved appreciation award. Law Abiding Technology. Law Abiding Technology, and after them, in the end, would be 360 degrees. So let's begin with Law Abiding. Many, many thanks and many, many congratulations. A picture perfect moment as we freeze this time, this moment to be remembered for a very long while after today. 360-degree investigations. Everybody, please put your hands together.
Thank you so much, our Chairman, sir, and thank you, our Chief Guest.